أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو کلاس 6. انشاءاللہ تعالی آج ہم جزم اور سکون کے بارے میں پڑھیں گے. ہم نے کلاس 5 میں دیکھا تھا کہ ہم نے کلاس 5 میں دیکھا کہ واٹ از حرکات. واٹ از حرکات زبر زیر پیش جو ہے 3 ووولز اس کو ہم حرکات کہتے ہیں. اوکے. اور ہم نے دیکھا تنوین کے بارے میں. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین از ایکچولی نون ساؤنڈ. پھر آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آج جزم کے بارے میں پڑھیں گے کہ what is جزم ہے سکون. ٹھیک ہے. جزم ایک حرف کی حالت ہے. ٹھیک ہے. جزم کی علامت ایک چھوٹا سا دائرہ یا صفر ہوتا ہے جو ہر ایک لیٹر کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے. علامت جو ہے اس کی ایک سرکل ایک صفر جیسا ہوتا ہے اور ایک الٹا والا سی جیسے شیپ میں ہوتا ہے. چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے اس کا. اوکے. جزم یہ علامت کو جزم والے جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں. اور جس حرف پر ہے اسے سکون کہتے ہیں. جس حرف پر ہے اسے ساکین کہتے ہیں. ساکین حرف ساکین حرف ایک لفظ شروع نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم جزم والے حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف یعنی اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. اس کو ہم سنگل اکیلے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. یعنی سکون we cannot read by itself. It always need a previous letter. Like اب ہم دیکھیں گے با جزم ہے. ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو we can't read. اگر ہم با جزم سے پہلے حمزہ ایڈ کر دیں یا کوئی لیٹر حرکات کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ تب ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم ریسٹنگ ساؤنڈ کہتے ہیں انگلش میں. ریسٹنگ ساؤنڈ. جزم والے حروف کو ہم سکون کہتے ہیں. جن حروف پر سکون ہو انہیں ہم حرف ساکینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جزم والے حرف کو ساکین کہتے ہیں. ساکین ہاں جزم اور سکون اس کے 2 ہی نیم ہیں. ساکین ہم کب کہیں گے جب ایک لیٹر ہے اور اس کے اوپر ساکین ہے تو ہم کہیں گے لائک با ہے با پہ جزم ہے تو ہم کہیں گے با ساکینہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا نیم ساکین ایسا ہم نہیں کہیں گے. اس کے صرف 2 ہی نام ہے جزم اور سکون ہے. لیکن ساکین ہم کب کہیں گے جب ایک حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے تو اس جزم والے حرف کو ہم ساکین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. با ساکینہ تا ساکینہ سا ساکینہ ایسا. جس حمزہ پر جزم ہو اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. یعنی اب دیکھیے حمزہ ہے یہ حمزہ کے اوپر اگر جزم آ گیا تو اس کو ہم جھٹکا دینا ہے جرکنگ. ٹھیک ہے. جھٹکا دے کے پڑھنا ہے ہم یہاں پر اس کو سما ایسا یؤمنون. ٹھیک ہے. آئی ہوپ از اٹ کلیئر. ابھی یہاں ایگزامپل دیکھیے جزم کے. ایسا یہ صفر ہے اور ایک ایسا ہاف اسمال ایسا آتا ہاف والا اسمال سی جیسا الٹا سی جیسے شیپ میں آتا ایک دائرہ جیسا تو وہ جزم کہلاتا ہے. اوکے. اینڈ ہم اس کا ایگزامپل دیکھیں گے. تب تو یہاں دیکھیے ہم اگر اس کو صرف با جزم دیکھے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. ہم پہلے والے لیٹر سے ہی اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیہا فأتبع اشہد تصبر ایسا. ہمیں جزم والے لیٹر کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ فرسٹ والے لیٹر سے ملانا پڑتا ہے. اوکے. اور دیکھیے نیکسٹ جو ہے فرسٹ وی ہیو ٹو نو 5 اسپیشل لیٹرز آلسو.
जज़्म के बारे में जो है हमने यहाँ तक देखा कि जज़्म वाला हुर्फ जो है साकीन कहलाता है और जज़्म वाला हर्फ अपने पहले या पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जज़्म वाले हर्फ को सुकून कहते हैं। जिन हुरूफ पर सुकून हो उसे हुर्फ साकिना कहते हैं, ठीक है? एंड जब भी हमज़ा पर जज़्म आए तो हम उस पर झटका देंगे, झटका देके पढ़ेंगे। एंड हम अभी इसके 5 लेटर्स को भी जानना ज़रूरी है, जज़्म वाले जिस पर 5 जज़्म आएगा और ये इसको हम कैसा पढ़ेंगे वो है क़लक़ला, ठीक है? क़लक़ला के लेटर्स को हम देखेंगे। क़लक़ला यानी बाउंसिंग है, बाउंसिंग हम इसे कहेंगे क़लक़ला। एंड क़लक़ला के 5 लेटर्स हैं। फर्स्ट है क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। ये 5 लेटर्स है, इसको हम क़लक़ला के 5 लेटर्स कहेंगे। और इसका मजमुआ जो है क़ुत्बुज्जद्दीन है। देखिए क़ुत्बुज्जद्दीन, if you want to remember these 5 letters, so you have to remember this one in one word. ओके, तो क़ुत्बुज्जद्दीन अगर आप याद रखेंगे तो हम इसमें 5 लेटर्स पूरे आ जाएंगे। क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट है देखिए क़लक़ला के मायने हैं जंबिश, लर्जिश, बाउंसिंग के। ओके, अब जब हुर्फ क़लक़ला पर जज़्म आए तो हरकत देकर यानी जंबिश से पढ़ते हैं। यानी जब इन पर जज़्म हो, जब इन 5 लेटर्स पर जज़्म हो तो उनको पढ़ते वक्त उनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा इको साउंड, थोड़ा-सा हरकत देना है, थोड़ा-सा बाउंस करना है, थोड़ा-सा जंबिश करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पर इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में क़लक़ला नहीं होगा। यानी जब भी कोई जज़्म वाले इनके अलावा इन 5 लेटर्स के अलावा जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स है अरेबिक के, जब उन पे जज़्म आएगा तो हम उस पे क़लक़ला नहीं करेंगे। ओके, हम उस पे क़लक़ला नहीं करेंगे, हम उसको नॉर्मली मिला के पढ़ेंगे। लेकिन जब इन 5 लेटर्स पे जज़्म आएगा तो हमें इसको बाउंस करके क़लक़ला करके पढ़ना होगा। जंबिश का मतलब होता है आवाज़ का पलट कर आना। आई सेड यू ना कि इको साउंड होता है थोड़ा-सा, तो इको साउंड आना जंबिश यानी वही है लर्जिश। और मखरज में टक्कर खाते हैं, हरकत देना होता है थोड़ा-सा। तो इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताया तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ खलखला। तो हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे इंशाल्लाह, एक-एक एग्ज़ाम्पल्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ देखिए क़ाफ का एग्ज़ाम्पल है, क़ाफ के ऊपर अभी जज़्म आ गया है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए इन 5 लेटर्स पे जब भी जज़्म आया है तब ही हमें क़लक़ला करना है। जब इन पे हरकत होगी, ज़बर ज़ेर पेश आएगा तो उस पे कोई क़लक़ला नहीं होगा, हम उसको नॉर्मली हरकत के साउंड के साथ पढ़ लेंगे। लेकिन जब इस पे जज़्म आएगा तब ही हमें इसको बाउंस करके पढ़ना है, क़लक़ला करके पढ़ना है। तक, तक, तक़तुलु, तक़तुलु, तक। जो हम हमारे आवाज़ में देखिए पॉज़ नहीं है। जब हम क़लक़ला कर रहे हैं तो हमारे आवाज़ में कोई ऐसा पॉज़ नहीं आ रहा। हम उसको रोक स्टॉप नहीं कर दे रहे कंप्लीटली अपने माउथ के अंदर। हम इसको यहाँ पर थोड़ा-सा हरकत दे रहे। थोड़ी-सी हम इसमें बाउंसिंग कर रहे। तक, तक़तुलु, तक़तुलु। नेक्स्ट देखिए, तो पे जज़्म आ गया, तो अब हमें यहाँ पर क़लक़ला करना होगा। नतमिसु, नतमिसु। नेक्स्ट देखिए, बा, बा पे जज़्म है, तो ऑब्वियसली खलखला करना है। सब्रहु, सब्रहु, सब, ब, ब, ऐसा। ओके, हम बा को जब भी पढ़ते तो लिप्स बंद हो जाते अपने, बाप, अब ऐसे। लेकिन हम यहाँ पर लिप्स को बंद नहीं करना है, सब बा पढ़ के एकदम हमें अपने लिप्स को ओपन कर लेना है। अब, ब, ओके, सब्रहु, ऐसे।
नेक्स्ट देखिए जीम है, जीम पे भी यहाँ पर जज्म आ गया है, तजरी, तज, तज, तजरी, तजरी ही, तजरी ही। नेक्स्ट यहाँ पर दाल है, फदरा का, फदरा का, फद, फदरा का। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको समझ आ गया कि कलकला क्या है, कलकला के लेटर्स, कलकला कब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं कि मखारिजुल हुरूफ हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हरकात को देख लिया, तनवीन को देख लिया, हमने जज़म को भी देख लिया, रेस्टिंग साउंड जिसे हम कहते हैं। अब हमने यहाँ पर कलकला के बारे में भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुतबो जद्दिन एक वन वर्ड में आप इन 5 लेटर्स को याद रख सकते हैं। We have to bounce the letter, but all of other huruf except the khutbu jaddin, the other letters we have to learn softly and lightly, but we should not do qalqala for other letters except this, okay? In Quran, a khutbu jaddin will always be in sukoon place, so then we have to bounce and read it, like tajri, बतशा। हमने अभी एग्जाम्पल्स भी देखा, सौबहन, ऐसा आएंगे, बहुत सारे आएंगे कुरान में। आप प्रैक्टिस के लिए कुरान में सर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कलकला के लेटर्स कहाँ हैं और उसको हमें कैसे पढ़ना है। तो बाउंस करके पढ़ना है प्लीज। यहाँ से आज आप आपको अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो गया है कि कलकला कब करना है, किस पे करना है। तो आप यहाँ से फॉलो करना है। और ये लेटर्स जब भी आएंगे जिस उस पे जज्म होगा और आप इसको बाउंस करके पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुई। कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल क्लियर एवरीथिंग। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।